हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग शेप्स, क्वाड्रिलेटरल्स। इंट्रोडक्शन, पॉलीगॉन्स, क्वाड्रिलेटरल्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. Now, introduction. In the previous class, we have studied about polygons. In this class, we will focus upon quadrilaterals. But before moving further, let us recall some of the facts about polygons. A simple closed curve made up of only line segments is called a polygon. In a polygon, each line segment is called a side of the polygon, and the point of intersection of consecutive sides is called a vertex. A polygon can be named by naming each vertex with a capital letter. For example, in the adjacent figure ABCD, this one ABCD, ये वाली figure is a polygon. AB, BC, CD, DA are its sides. AB, BC, CD and DA. These are the sides, and A, B, C and D are its vertex. A, B, C and D. These are the vertex. Now next, convex and concave polygons. Convex polygon. A polygon in which the measure of each angle is less than 180 degree is called a convex polygon. In the adjacent figure A, B, C, D, E is a convex polygon. ये हमारा क्या है? Convex polygon, क्योंकि each angle is less than 180 degree, right? Now next is concave polygon. A polygon in which the measure of at least one angle is more than 180 degree is called a concave polygon. In the adjacent figure, A, B, C, D, E, F is a concave polygon in which angle DEF, angle ये वाला DEF is more than 180 degree. Here in this chapter, we will be dealing with convex polygons only, and they will be referred to as polygons. Now next is regular and irregular polygon. First is regular polygon. A polygon in which all the sides are of equal length is called a regular polygon. जिसकी सभी sides क्या हैं? एक की length की है, equal length की. That is called regular polygon. For example, an equilateral triangle, a square, etc. Next is irregular polygon. A polygon in which all the sides are of unequal length is called an irregular polygon. Now next is sum of the measure of the exterior angles of a polygon. To find the sum of the exterior angles of a polygon, draw a figure of hexagon of the floor with a piece of chalk. Now start from A and walk along AB. On reaching B, we will have to turn through angle 1 to reach at C. यहाँ पे हमने एक पॉलीगॉन बनाया, ये A से B पे गए, B से जब हम C की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा एंगल क्या बना? एंगल 1 to reach at C. Now from C, turn through angle 2 to reach at D. C से D पे पहुंचने के लिए हमने एंगल 2 का टर्न लिया. From D, turn through angle 3 to reach at E. D से E पे करने के लिए हमने एंगल 3 का टर्न लिया. Now from E, turn through angle 4. So continue to move in this manner until we return to line AB. इस तरह से हमने इस तरह से मूव किया जब तक कि हम वापस कहाँ नहीं पहुंच गए? लाइन AB पे. Hence we start from A and come back to A. That is, we made one complete revolution, or we turn through 360 degree. That is angle 1,
plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is equals to 360 डिग्री। जितने भी हमारे ये एक्सटीरियर बाहर है ना फिगर के, these are exterior. Note that whatever be the number of sides of the polygon, the sum of the exterior angles is 360 डिग्री। कितनी भी साइड्स हों हमारे एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल हमेशा क्या रहेगा, 360 डिग्री। एनालिटिकल मेथड, टेक एनी ऑफ द पॉलीगॉन, सपोज अ पेंटागन, पेंटागन मीन्स 5 साइड्स। हमने एक पेंटागन लिया, राइट? तो यहां पे हमारा एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ये एंगल ए है, राइट, अंदर। तो 180 में से एंगल ए को माइनस किया तो हमारा एंगल 1 आया। इन द सेम वे एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी। हमने एंगल 2 को निकालने के लिए पूरा क्या है, 180 डिग्री का है, तो 180 में से हमने क्या माइनस किया, एंगल बी। सेम वे एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी। एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल डी। एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ई। So, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 is equals to, सबकी वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे, 180 माइनस एंगल A प्लस 180 माइनस एंगल B प्लस 180 माइनस एंगल C प्लस 180 माइनस एंगल D प्लस 180 माइनस एंगल E। तो 180 को ऐड किया तो कितना हुआ, 900 डिग्री, माइनस क्या बचा, A B C D E, all angles, right? Sum of the interior angles of a pentagon is 540 डिग्री। एक पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का टोटल कितना होता है, 540 डिग्री। दैट इज इक्वल्स टू 900 में से ये हमारा पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स हैं, उसमें से 540 डिग्री को माइनस किया, दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ मैथ्स फैक्ट, sum of interior angles of a polygon of n sides is equals to n minus 2 multiplied by 180 डिग्री। किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी साइड्स हैं, n साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स जितनी भी है उसमें से -2 और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 डिग्री से। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स, हर एक एंगल का मेजर निकालने के लिए एक रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर मतलब जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल, और नंबर ऑफ साइड्स क्या है, n, दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 2 अपॉन n मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स इज इक्वल्स टू, एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, एक, दैट इज 360 डिग्री अपॉन n, राइट? नाउ एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n, हमने नंबर ऑफ साइड्स क्या लिया, n, n इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं, n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, 24 डिग्री का। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आई हमारी, 15। कितनी आई हमारी, 15 साइड्स हैं। सो द रिक्वायर्ड पॉलीगॉन हैज 15 साइड्स। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 4 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन बी x। हमने एक्सटीरियर एंगल का मेजर ले लिया कितना, x, राइट? देन इंटीरियर एंगल कितना है उसका 4 टाइम्स, तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 4x, और दोनों इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर पेयर बनाते हैं। तो x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 5 इज इक्वल टू 36 डिग्री।
नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 360 अभी कितना आया मेजर, 36 डिग्री, तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 36 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 10। सो द पॉलीगॉन हैज 10 साइड्स। तो इसी तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज quadrilaterals. A quadrilateral is a closed figure formed by 4 line segments. Let A, B, C and D be 4 points in a plane such that no 3 of them are collinear and the line segments AB, BC, CD and DA do not intersect except at their end points. Then the figure made up of these 4 line segments is called the quadrilateral ABCD. In quadrilateral ABCD, first, the 4 line segments AB, BC, CD and DA are called its sides. AB, BC, CD and DA. Now second, the 4 points A, B, C and D are called its vertices. A, B, C and D. These are vertices. Third is the 4 angles, angle ABC, angle BCD, angle CDA and angle DAB are called its angle, to be denoted by angle A, angle B, angle C and angle D. These are A, B, C and D. These are the 4 angles. Next, the 2 line segments AC and BD are called its diagonals. AC जो opposite points को match करते हैं, AC and BD. These are called the diagonals. Now next is adjacent sides. 2 sides of a quadrilateral which have a common end point are called its adjacent sides. In the given figure, AB, BC, BC, CD, CD, DA and DA, AB are 4 pairs of adjacent sides of the quadrilateral ABCD. कौन कौन सी? AB और BC, ये adjacent है, BC and CD क्योंकि ये common point है, end point है, CD and DA and AB. These are the adjacent sides. Now opposite sides. 2 sides of a quadrilateral are called its opposite sides if they do not have a common end point. In the given figure, AB, DC and AD, BC are 2 pairs of opposite sides of the quadrilateral ABCD. अपोजिट जिनके एंड पॉइंट कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं होता, तो हमारा ए बी किसके, डीसी और बीसी हमारा डीए का क्या है, अपोजिट साइड. नाउ नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल्स. 2 angles of a quadrilateral having a common side are called its adjacent angles. In the given figure, angle A, angle B, angle C and angle D and angle D, angle A are 4 pairs of adjacent angles of the quadrilateral ABCD. कैसे? एंगल A, ठीक है, और एंगल B, इसमें AB और BC, तो AB हमारी क्या है, कॉमन साइड. तो इस तरह से ये क्या है, हमारे एडजेसेंट एंगल्स जिनकी की एक कॉमन साइड होती है. नेक्स्ट इज अपोजिट एंगल्स. 2 angles of a quadrilateral which are not adjacent angles are called its opposite angles. In the given figure, angle A, angle C and angle B, angle D are 2 pairs of opposite angles of the quadrilateral ABCD. कौन कौन से, एंगल A, एंगल C का, एंगल B, एंगल D का, ये हमारे क्या हैं, इसके अपोजिट एंगल्स. नाउ ट्राई दीज. Fill in the blanks. First, in quadrilateral HOPE, the pair of opposite sides are HOPE.
HOPE, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसकी क्या है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड HO एंड PE, OP and EH, these are the opposite side. तो कौन कौन सी लिखेंगे हम यहाँ पे, HO और PE and OP and EH, राइट? इसी तरह से बाकी के फिलअप्स आप खुद ट्राई करेंगे. Now next topic is special types of quadrilaterals. First is parallelogram. A quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel is called a parallelogram. In the adjoining figure, AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. So, ABCD is a parallelogram. हमारा AB DC के और BC DA के क्या है, पैरेलल, और ये हमारी क्या है, AB is parallel to DC. This is the sign of parallel, right? Now next is rectangle. A parallelogram in which opposite sides are equal and each angle is a right angle is called a rectangle. In the adjoining figure, AB is parallel to DC, comma AD is parallel to BC, and AB is equal to DC and AD is equal to BC, and angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 डिग्री. तो यहाँ पे हमारी रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, और एंगल्स, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. सो ABCD is a rectangle. Now next is rhombus. A parallelogram in which all four sides are equal is called a rhombus. In the adjoining figure, AD parallel to BC, AB parallel to DC and AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. इसमें हमारी all opposite sides क्या है, parallel भी हैं और all sides are equal. So ABCD is a rhombus. Now next is square. A parallelogram in which all four sides are equal and all four angles are right angles is called a square. In the adjoining figure, AB is parallel to DC, AD is parallel to BC and AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, and angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree. Opposite sides are parallel, right, and all sides are equal and each angle is of 90 degree. So ABCD is a square. Now next is trapezium. A quadrilateral with exactly one pair of parallel sides is called a trapezium. In the adjoining figure, AB is parallel to DC. AB हमारा किसके पैरेलल है, AB is parallel to DC, एक पेयर जरूर पैरेलल होगा. So ABCD is a trapezium. Now next is isosceles trapezium. A trapezium in which two non-parallel sides, दोबारा बोलती हूँ इसको, now isosceles trapezium. A trapezium in which two non-parallel sides are equal is called an isosceles trapezium. In the adjoining figure, AB is parallel to DC and AD is equal to BC. So ABCD is an isosceles trapezium कि जो non-parallel sides हैं AD और CB, they are equal. Now next is kite. A quadrilateral in which two pair of adjacent sides are equal is called a kite. In the adjoining figure, AB is equal to BC, AD is equal to DC, AB is not equal to CD and BC is not equal to AD. So ABCD is a kite. Now next is try these. Write T for true and F for false. First is every parallelogram is a rhombus. No, not every parallelogram is a rhombus, not required. So it is a false statement.
तो इसी तरह से बाकी के स्टेटमेंट्स आप खुद पढ़ेंगे और ट्रू फॉल्स लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम. Theorem. Prove that in a parallelogram A is the opposite sides are equal, B is the opposite angles are equal, C is diagonals bisect each other. Proof. Let ABCD be a parallelogram. Draw its diagonals AC. हम ABCD एक क्या ले लेते हैं, पैरेललोग्राम ले लेते हैं और AC इसका क्या है, डायगोनल है. फर्स्ट हम देखते हैं AC हमने क्या लिया, डायगोनल लिया. इन ट्रायंगल ABC तो हमारी फर्स्ट ट्रायंगल बनी ये वाली ABC एंड ट्रायंगल CDA. वी हैव CDA, ये हमारी CDA. दो AC जो हमने डायगोनल ड्रॉ किया उससे हमारी दो ट्रायंगल्स बन गई, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स. जब हमारी दो पैरेलल लाइंस को थर्ड लाइन क्रॉस करती है, थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो क्या बनते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स एंड दे आर इक्वल. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स. ये हमारे क्या बने, एंगल 1 एंगल 4, ऑल्टरनेट एंगल 3 एंगल 2 एंड दे आर इक्वल. एंड AC इज इक्वल टू CA. दोनों में क्या है, कॉमन है. कॉमन हो गया तो हमारा क्या होगी, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी. कौन से, उससे ASA, एंगल साइड एंगल. सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. AB इज इक्वल टू DC, क्योंकि हमारी ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी, तो सारी साइड्स इक्वल है और एंगल्स इक्वल हैं. AB इज इक्वल टू DC, BC is equal to AD and angle B is equal to angle D. Similarly, by drawing the diagonal BD, we can prove that. इसी तरह से हम दूसरा डायगोनल ड्रॉ करेंगे BD, उससे भी हमारी दो ट्रायंगल्स बनेंगी, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDB. उनको भी हम सेम एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स और एक साइड कॉमन है तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. सो ट्रायंगल ABD is congruent to triangle CDB और angle A is equal to angle C. Thus, AB is equal to DC, BC is equal to AD and angle B is equal to angle D and angle A is equal to angle C. This proves A and B. इस तरह से हमारे A और B दोनों पार्ट प्रूव हो गए. In order to prove C, consider parallelogram ABCD and draw its diagonals AC and BD intersecting each other at point O. हमने ABCD ड्रॉ किया, दोनों डायगोनल्स ड्रॉ किए और दोनों डायगोनल्स हमारे किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, O पे. इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD हमने दो ट्रायंगल ली, OAB एंड ट्रायंगल OCD. We have AB is equal to CD, opposite side of a parallelogram. AB CD के इक्वल क्या है, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम जो इक्वल होती है. एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये दोनों क्या है हमारे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो इक्वल होते हैं. एंगल OAB एंड एंगल OCD, OAB इज इक्वल टू एंगल OCD. ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये भी इक्वल है, तो हमारी दोनों ट्रायंगल्स क्या प्रूव होगी, कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCD by ASA congruence condition. So OA is equal to OC and OB is equal to OD. This shows that the diagonals of a parallelogram bisect each other. दोनों को वो क्या करते हैं, bisect करते हैं. Conversely, a quadrilateral is a parallelogram if first is its opposite sides are equal, B is its opposite angles are equal, C is its diagonals bisect each other. Right? Note that. A rectangle, a square and a rhombus are special types of parallelograms. So, all the properties of a parallelogram are satisfied by each one of them. Now, next is diagonal properties of a rectangle. Theorem. Prove that the diagonals of a rectangle are equal and bisect each other. Proof.
कैसे प्रूव करेंगे इसको? लेट ABCD बी अ रेक्टेंगल whose diagonals AC and BD intersect at the point O. राइट, ये हमने क्या ले लिया, एक यहां पे हमने क्या प्रूव करना था, रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, और इसके दो डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए AC एंड BD जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ये ट्रायंगल ले ली दोनों इधर वाली, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों ट्रायंगल्स ले ली. राइट, वी हैव AB इज इक्वल टू BA, AB इज इक्वल टू BA, ये दोनों में कॉमन है. एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD, ईच इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल B, ये A है, ये B, ये C और ये D, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, कितना, 90 डिग्री. BC इज इक्वल टू AD, अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल. AD और ये BC, ये दोनों क्या हो गई, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल. तो हमारी ट्रायंगल क्या प्रूव होगी, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड. So triangle ABC is congruent to triangle BAD by side angle side congruence condition. So AC is equal to BD. तो हमारा AC किसके इक्वल हो गया, BD, क्योंकि ट्रायंगल प्रूव हो गई. और ये क्या है, AC और BD दोनों हमारे क्या है, डायगोनल्स है. Hence the diagonals of a rectangle are equal. Now in triangle OAB and triangle OCD, OAB एंड ट्रायंगल OCD, ये दोनों अपोजिट वाली ट्रायंगल्स ले ली. एंगल OAB एंड एंगल OCD ऑल्टरनेट एंगल्स. एंगल OBA एंड एंगल ODC ऑल्टरनेट एंगल्स. OAB एंड एंगल OCD, ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है और ये वाला एंगल इसका ऑल्टरनेट एंगल है. एंगल OBA is equal to angle ODC alternate angles. So AB is equal to CD, AB और CD इक्वल है किसकी है, रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल. सो ट्रायंगल OAB is congruent to triangle OCD by angle side angle congruence condition. So OA is equal to OC and OB is equal to OD. This shows that the diagonals of a rectangle bisect each other. Hence, the diagonals of a rectangle are equal and bisect each other. इसलिए जो diagonals हैं वो equal भी होते हैं और एक दूसरे को bisect भी करते हैं. Now next, diagonals properties of a rhombus. Theorem. Prove that the diagonals of a rhombus bisect each other at right angles. Proof. Let ABCD be a rhombus whose diagonals AC and BD bisect at the point O. We know that the diagonals of a parallelogram bisect each other. Also, we know that every rhombus is a parallelogram. So, the diagonals of a rhombus bisect each other. तो हमने यहाँ पे क्या लिया, rhombus लिया, उसके diagonals बनाए जो O पे bisect करते हैं. और rhombus हमारा क्या होता है, parallelogram होता है. और parallelogram के क्या है, diagonals बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल होते हैं. सो OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD. इन ट्रायंगल COB, इस वाली ट्रायंगल एंड ट्रायंगल COD, दोनों ट्रायंगल्स ले ली. CB इज इक्वल टू CD, CB इज इक्वल टू CD क्या है, रोम्बस की साइड है, इक्वल होती है. और हमारी क्या है, OC दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है. और OB इज इक्वल टू, हमारी OB इज इक्वल टू OD अभी हमने प्रूव की है, ये प्रूव्ड है. तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या होगी हमारी, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. सो ट्रायंगल COB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. सो एंगल COB इज इक्वल टू एंगल COD. But
एंगल COB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो बनाते हैं हमारे लीनियर पेयर, राइट। तो COB क्योंकि दोनों को हमने इक्वल प्रूव कर दिया है, राइट। अभी हमने इक्वल प्रूव किया तो हमने COD की भी जगह क्या लिखा, COB दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो डबल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो COB कितना आ गया हमारा, 180 को 2 से डिवाइड किया 90 डिग्री। Hence the diagonals of a rhombus bisect each other at right angle। इसलिए रोम्बस के जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। Now next is diagonals properties of a square। Theorem, proof। We know that the diagonals of a rectangle are equal. Also we know that every square is a rectangle, so the diagonals of square are equal. Also we know that the diagonals of a rhombus bisect each other at right angles, but every square is a rhombus, so the diagonals of a square are bisect each other at right angles. Hence the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. Now examples. Prove that any two adjacent angles of a parallelogram are supplementary। Solution करते हैं इसका। Let ABCD is a parallelogram, then AD is parallel to BC and AB is a transversal। AB is a transversal कि हमारा AD और BC पैरेलल है और ये इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल है, राइट। सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A plus angle B is equals to 180 degree, that is the sum of interior angles of the same side of the transversal is 180 degree. Similarly angle B plus angle C, इसी तरह से हमारी अगर ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल B plus angle C is equal to 180 degree. Similarly angle C plus angle D is equal to 180 degree and angle D plus angle A is equal to 180 degree. Thus the sum of any two adjacent angles of a parallelogram is 180 degree। इससे प्रूव होता है कि दो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है पैरेललोग्राम में होता है 180 डिग्री। Hence any two adjacent angles of a parallelogram are supplementary। Supplementary means दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। एक की वैल्यू गिवन है तो दूसरे की वैल्यू निकालने के लिए हम 180 में से उसको माइनस कर देंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। The adjacent figure HOPE is a parallelogram. Find the angle measures x, y and z. Also state the properties used to find them. हमें एक ये फिगर गिवन है HOPE, इसमें हमें x, y और z इनकी क्या निकालना है, मेजरमेंट। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एंगल HOP प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। HOP एंगल HOP प्लस 70 डिग्री, ये क्या हमारा लीनियर पेयर है, राइट। ये कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल HOP ये वाला एंगल प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। HOP की वैल्यू निकालेंगे तो 70 को अपोजिट साइड जाके माइनस करेंगे, दैट इज 110 डिग्री। तो हमारा HOP कितना आ गया 110 डिग्री। HOP किसके इक्वल है, HOP हमारा किसके इक्वल है, हमारा HEP के क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये दोनों अपोजिट एंगल्स है क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो एक कितने का डिग्री का आया, HOP हमारा 110 डिग्री का आया, तो HEP भी कितना आ गया हमारा 110 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई यहां से हमारी 110 डिग्री। HE is parallel to OP and HP is a transversal, तो y is equal to 40 डिग्री, that is alternate interior angles। तो यहाँ पे हमारा y क्या है, इन्होंने HE is parallel to OP, HE is parallel to OP, right। और ये हमारी क्या है इसकी ट्रांसवर्सल, क्या है HP हमारी क्या है ट्रांसवर्सल। तो ये हमारे क्या है दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स, क्या हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये 40 डिग्री है तो y भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया 40 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्सो एंगल EPO,
ये हमारा क्या है, एंगल EPO, एंगल EPO एंड एंगल HOP, एंगल HOP। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है हमारे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल EPO प्लस HOP इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। हमारे पास HOP का मेजर है 110 डिग्री, तो एंगल EPO प्लस HOP की जगह क्या रखा 110 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से हमारा एंगल EPO आ गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। एंगल H इज इक्वल टू एंगल EPO, एंगल H इज इक्वल टू एंगल EPO, EPO। ये क्या है हमारे अपोजिट एंगल्स, ये क्या है हमारे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो 40 डिग्री प्लस Z इज इक्वल टू EPO, 40 डिग्री प्लस Z इज इक्वल टू EPO, ये 40 डिग्री प्लस Z इज इक्वल टू EPO। तो हमारा कितना आ गया, ये EPO है हमारा 70 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस Z इज इक्वल टू 70 डिग्री, Z की वैल्यू निकाली, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। हेंस X इज इक्वल टू 110 डिग्री, Y is equal to 40 degree and Z is equal to 30 degree. Now next example. In parallelogram ABCD, angle D is equals to 125 degree. Determine angle A and angle B. Solution देखते हैं इसका. Since the sum of any two adjacent angles of a parallelogram is 180 degree. दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल डी हमारा एंगल ए का एडजेसेंट है, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा एंगल ए प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए निकालने के लिए 180 में से 125 डिग्री को क्या किया, माइनस किया, तो एंगल ए कितना आ गया हमारा 55 डिग्री। और एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल्स, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल ए अभी हमने निकाला 55 डिग्री, तो एंगल बी कितना हुआ 180 डिग्री में से 55 डिग्री को माइनस करेंगे 125 डिग्री। हेंस एंगल ए इज इक्वल टू 55 एंड एंगल बी इज इक्वल टू 125 डिग्री। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 4:5. Find all the angles of the parallelogram. सॉल्यूशन करते हैं इसका। In parallelogram ABCD, angle A and angle B are two adjacent angles. ठीक है, एंगल A और एंगल B ये क्या है एडजेसेंट एंगल्स, इनका रेशियो गिवन है 4:5। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल A इज इक्वल टू 4x एंड एंगल B इज इक्वल टू 5x। सिंस द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। हमें पता है पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A इज 4x, एंगल B इज 5x, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4 प्लस 5 इज 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकाली, दैट इज 9 2 जा 18, 20 डिग्री। तो एंगल A कितना आया, x की वैल्यू रख दो, 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 20 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। Also we know that opposite angles of a parallelogram are equal. Opposite angles क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल A कितने डिग्री का है 80 डिग्री, तो एंगल C भी कितने डिग्री का होगा 80। एंगल B कितने डिग्री का है 100 डिग्री, तो एंगल D भी कितने डिग्री का होगा 100 डिग्री, राइट। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, दैट इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। हेंस angle A is equal to 80 degree, angle B is equal to 100 degree, angle C is equal to 80 degree and angle D is equal to 100 degree. Now next example. The diagonals of a parallelogram ABCD intersect at O. XY contains O and X and Y are points on opposite sides of the parallelogram. Give reasons for each of the following statements. First is OB is equal to OD, B is angle OBY is equal to angle ODX, C is angle BOY is equal to angle DOX, D is triangle BOY is congruent to triangle DOX. Now state if XY is bisected at O. Solution देखते हैं इसका।
In triangle BOY and triangle DOX, BOY, this triangle, and triangle DOX, this one, these two triangles, A is OB is equal to OD, OB is equal to OD, ये OB और ये OD क्या है? ये डायगनल्स, डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये इक्वल हुए. B इज एंगल OBY इज इक्वल टू एंगल ODX, OBY, एंगल OBY इज इक्वल्स टू एंगल क्या है? ODX. ये क्या है हमारे? OBY और ODX, ये हमारे क्या हो गए? ऑल्टरनेट एंगल्स. क्यों? क्योंकि हमारा AD पैरेलल है BC के. C है एंगल BOY, एंगल BOY, दिस एंगल DOX, these are vertically opposite angles. These are, जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, तो क्या बनते हैं? vertically opposite angles. D is triangle BOY is congruent to triangle DOX by angle side angle congruent condition. ऊपर दो एंगल्स और एक साइड उसकी इक्वल है, तो इस वजह से हमारे क्या है? वो congruent. So OY is equal to OX, इसलिए हमारा OY क्या है? OX के इक्वल है. Hence XY is bisected at O, इसलिए जो O है उस पे बाइसेक्ट हो रही है हमारी XY. राइट? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. The perimeter of a parallelogram is 150 centimeter. One of its sides is greater than the other by 25 centimeter. Find the length of all the sides of the parallelogram. Solution देखते हैं इसका हम. Let one side of the parallelogram is equals to x centimeter. Then its other side is x plus 25 centimeter. जो given है हमारा, तो हमने एक साइड उसकी क्या ले ली? x सेंटीमीटर. राइट? तो अदर साइड हमारी क्या होगी? x plus 25 centimeter. Since opposite sides of a parallelogram are equal, so its remaining two sides are x centimeter and x plus 25 centimeter. ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर, ये x plus 25 है तो ये भी x plus 25 centimeter. Perimeter of this parallelogram, perimeter क्या होता है? Sum of all sides. तो x सेंटीमीटर प्लस x plus 25 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर प्लस x plus 25 सेंटीमीटर, तो x plus x plus x plus x कितना हो गया हमारा? 4x, और 25 plus 25 is 50 सेंटीमीटर. बट पैरीमीटर कितना गिवन है हमें? 150 सेंटीमीटर. तो 4x plus 50 को हम किसके इक्वल रखेंगे? 150 सेंटीमीटर के. तो 4x 50 अपोजिट साइड जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज 150 माइनस 50 इज इक्वल टू 100. x की वैल्यू निकालेंगे तो अपोजिट साइड 4 डिवाइड हो जाएगा. 100 अपॉन 4 इज इक्वल टू 25. लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर x सेंटीमीटर, x प्लस 25 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, x प्लस 25 सेंटीमीटर, दैट इज जो x की वैल्यू आई दैट इज 25 सेंटीमीटर और x प्लस 25 इज 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. In the adjoining rectangle ABCD, diagonals intersect at O. If angle OAB is equal to 30 degree, find A is angle ACB, angle ACB and angle ABO, angle ABO, ABO, this angle, and angle COD, angle COD, this angle, and angle BOC, angle BOC, BOC, this angle. ये हमें फाइंड आउट करने हैं. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, A, B एंड C, इसमें हमारा क्या है? ABC, ABC, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, क्योंकि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के. एंगल ACB, इस ट्राइंगल में हमारा एंगल ACB, ACB, एंगल
ए बी, एंगल सी ए बी, एंगल ए बी सी, तीनों एंगल्स ले लिए, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या है ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है 180 डिग्री, तो ये हमारा ये हो गया 180 डिग्री। इसमें से हमारा बी वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ए हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो यहाँ से हमारा एंगल आ जाएगा एंगल ए सी बी प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, माइनस कर देंगे दैट इज 60 डिग्री। ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी हमारा बी डी के इक्वल है, क्या है ये हमारे डायगनल्स, डायगनल्स हमारे इक्वल होते हैं, डायगनल्स इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, तो हमारा ओ ए, हम ए सी को कैसे लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ सी, लेकिन हम दोनों को क्या लिखेंगे डबल ए ओ इज इक्वल टू हमारा ओ बी ओ डी के इक्वल है, तो पूरा बी डी को हम डबल ओ बी भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स बी ओ, यहां से हमारा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा ए ओ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी ओ, राइट। तो हमारा क्या हुआ ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ए ओ बी ओ के इक्वल है, तो हमारे क्या है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इज इन ट्रायंगल OAB, OAB में हमारी साइड्स इक्वल आ गई, तो एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू 30 डिग्री हमारा आ गया। नाउ सी पार्ट, इन ट्रायंगल AOB एंगल AOB प्लस एंगल ABO प्लस एंगल OAB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है 180 डिग्री, इसमें से 2 एंगल्स हमारे पास हैं 30 डिग्री और 30 डिग्री के, तो एंगल AOB कितना आ जाएगा 30 प्लस 30 60, 180 में से हम 60 डिग्री को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे अपोजिट साइड लाके, तो हमारा कितना आ गया AOB हमारा 120 डिग्री और एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये क्या हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ डी पार्ट, एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या बनाते हैं वो दोनों लीनियर पेयर, क्या बनाते हैं लीनियर पेयर, एंगल BOC प्लस COD हमें अभी निकाला है कितना 120 डिग्री, तो BOC कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, द डायगोनल्स ऑफ ए rhombus आर 6 centimeter and 8 centimeter. Find the length of a side of the rhombus. Solution देखते हैं इसका। Let ABCD be a rhombus in which diagonal AC is equal to 8 centimeter and diagonal BD is equal to 6 centimeter. ये हमने एक rhombus लिया ABCD जिसमें AC हमारा 8 centimeter है और BD हमारा कितना है diagonal 6 centimeter. Since the diagonals of a rhombus bisect each other at right angle, right angle का मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं यहाँ पे, so कैसे करेंगे AO इज इक्वल टू AO इज इक्वल्स टू हमारा क्या है हाफ ऑफ AC, पूरे का हाफ, ये क्या है एक दूसरे को जो ये डायगोनल्स हैं यहाँ पे ये बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल भी होता है 90 डिग्री, तो हमारा OA या AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC और AC कितना दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो AO कितना आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, BO हमारा हाफ ऑफ BD और BD कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो यहां से हमारा BO कितना आ गया ये 3 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्रायंगल, ये हमारी क्या बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमने ट्रायंगल AOB इसमें से हम AB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के, हमारा AO कितना आया 4 सेंटीमीटर और OB कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने AO की जगह 4 सेंटीमीटर और OB की जगह कितना लिखा 3 सेंटीमीटर, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, टोटल किया दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, AB स्क्वायर है 25 किसका स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा आंसर 5, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हेंस the length of each side of the rhombus is 5 centimeter. Now try these. Name the quadrilateral whose diagonals first is
बाइसेक्ट ईच अदर, किसके बाइसेक्ट करते हैं? रोम्बस के भी करते हैं, रेक्टेंगल के भी करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल के भी करते हैं। तो इसी तरह से आपको बताना है कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और बाकी की दोनों स्टेटमेंट्स भी आपको बतानी है। इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसकी रिवीजन आप खुद कीजिए।